Hello everyone. Now welcome to another class of Animal Kingdom, and in this kingdom we will study about phylum Annelida. Now first of all I would like to say thank you so much for your feedback. One of the student was saying that video quality in earlier video was very poor. Thank you so much for your feedback. Now this time I have tried some different way of presenting my video. I hope all you will like this, and if still there is any problem, you are most welcome to share your feedback with me. Your feedback are very valuable for me. So thank you so much for watching my video. Now moving on to Animal Kingdom. Dear students, before starting our lecture, I would like to tell you that this is the most simplest chapter. At this time you might feel difficulty in learning the examples and different characteristics, but as the syllabus progress you will come to know that this is the easiest chapter where there is a little role of IQ. You have to learn the things, you have to learn the facts. As far as earlier videos are concerned, in which there was some problem regarding clarity, I think there is no issue with the voice is very much clear. In very early video issue was with my voice also, so sorry for inconvenience. So what I was trying to say, that if you feel difficulty in watching the content, whatever I have written on the page, it is not clearly visible to you, then it is my humble request or suggestion that you should take book with yourself, कौन book, NCERT, so that you are able to read out the words. If you are having किसी भी earlier videos में अगर आपको विजुअल क्लियर नहीं है कि मैंने पेज पर क्या लिखा है, तो वो आप हेल्प ले सकते हैं बुक की. और मेरा मेन पर्पस जो है ये चैप्टर स्टार्ट करने का, और 12th में भी मैंने इको से स्टार्ट किया है, उसमें मेन पर्पस ये ही था, बिकॉज वी आर नॉट IT एक्सपर्ट एंड आई एम नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेकिंग वीडियोज़. पहले भी मैंने वीडियोज़ शूट करने की कोशिश की है. इट वॉज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, और अलग अलग तरह के इश्यूज़ हर बार आ रहे थे. सेम इज़ हैपनिंग दिस टाइम ऑल्सो. कभी आवाज़ का इश्यू है, कभी वीडियोज़ विजुअल्स का इश्यू है. तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़ एंड आई होप दिस टाइम इट विल बी much better experience. In case if you are having still any problems या areas where improvement can be made, so your suggestions are most welcome. I never expect कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो you should say अच्छा very good. अच्छा है वो तो देखने से ही पता चल जाता है कि whether you are watching the video or not. In case you feel any problem, your suggestions are always invited. हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम की. This is totally a learning chapter. Lot of cramming is there, examples you have to learn, and characters are there. characters को हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ सकते हैं. तो अगर वीडियोस को देखने में कोई दिक्कत है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम बुक. अदरवाइज जो भी वर्ड आगे आएंगे और पीछे मुझे लगता है कि बच्चे ढंग से नहीं समझ पाए, आई विल अगेन क्लियर टू देम. सो आई होप वी शुड स्टार्ट नाउ. सो गेट रेडी टू स्टडी अनदर फाइलम, and the next phylum is most significant feature of phylum Annelida. Body is divided into segments externally as well as internally. जो segmentation है that is external as well as internal. So metameric segmentation means body is divided externally as well as internally, and there is serial repetition of some organs. कुछ ऐसे organs होंगे जो segment wise repeat हो रहे हैं. Now moving to next. अब आगे बहुत सिंपल रहेगा. ऑलमोस्ट जो जितनी भी टर्म्स आगे आएंगी ऑलमोस्ट वी हैव स्टडीड, और ऐसा कुछ नहीं है जो हम नया यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Annelida word is derived from Greek word annulus. Annulus का मतलब होता है रिंग.
अगर हम अर्थवर्म को देखें, लीच को देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी रिंग, एक के ऊपर एक रिंग हम रखते चले जाएं तो वी विल बी हैविंग स्ट्रक्चर जिसको हम जो किससे रिजेंबल करेगा, एनालिडा से. सो बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनुलाई. ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम से आया है, रिकॉल करेंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक आया है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से. आगे कंटिन्यू रहेगा कॉर्डेटा तक, तो नथिंग इज न्यू. बायलेटरल सिमेट्री अगेन स्टार्ट फ्रॉम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस. एंड बायलेटरल सिमेट्री मीन्स एनिमल की बॉडी में दो हाफ हैं, राइट हाफ लेफ्ट हाफ, और दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन वेरी इजी टर्म, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और जिन एनिमल में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा वहाँ पर बॉडी प्लान होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. यूसीलोमेट यहाँ पर फोकस करना, जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है. यूसीलोमेट का मतलब है ट्रू सीलोम. ध्यान रहे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन से फाइलम में सबसे पहले ट्रू सीलोम डेवलप हुआ. सो दैट इज यूसीलोमेट. पीछे जाएंगे एस्कहेलमिन्थिस सूडोसीलोमेट, उससे पीछे जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस एसीलोमेट. सो प्लेटीहेल्मिन्स में नो सीलोम, एस्कहेलमिन्स सूडोसीलोम, एनालिडा यूसीलोम. एनालिडा ऑनवर्ड आगे सब क्या रहेंगे, यूसीलोमेट. लेकिन स्टार्टिंग की वीडियो में टर्मिनोलॉजी में हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप ऑफ सीलोम, वन इज साइजोसीलोम, वन इज एंटीरोसीलोम. डेफिनेशन हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे. साइजोसीलोम मीन्स द सीलोम विच इज डेवलप्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम. एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज वहाँ पर हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया है और उसको अच्छे से समझा भी है. साइजोसीलोम. अब क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो धीरे धीरे एनिमल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. जैसे रेस्पायरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, स्किन इज प्रेजेंट फॉर रेस्पायरेशन. और उसके अलावा अब यहाँ पर स्किन के फीचर देखेंगे. स्किन इज थिन, किस लिए, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके. एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एयर से ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और बॉडी से जो CO2 है वो बाहर आ जाएगी. दिस इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन मीन्स सब्सटेंसेज आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आपने इसको पहले भी कहीं पढ़ा है. हमारे बॉडी में रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज लंग्स. एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके लेवल पे होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे. और इसके लिए जो एल्वियोलाई हैं दे आर वेरी थिन ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जल्दी जल्दी हो सके. तो अर्थवर्म के केस में, एनालिड्स के केस में रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज स्किन एंड फॉर दिस स्किन इज केप्ट थिन. इसके बाद डिफ्यूजन जो है उसके लिए हमेशा सरफेस कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट. यहाँ पर भी जो एनिमल है उसकी स्किन हर वक्त मॉइस्ट रहती है बिकॉज बॉडी से लगातार जो बॉडी फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड है, वो डॉर्सल पोर के थ्रू बाहर आता रहता है. स्किन ऑफ द एनिमल इज केप्ट मॉइस्ट. एक और एनिमल है जो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है, यू माइट हैव स्टडीड फ्रॉग. फ्रॉग में आपने कभी फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश करी है, बहुत स्लिपरी बॉडी होती है फ्रॉग की. इट्स नॉट ईजी टू होल्ड फ्रॉग इन अवर हैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम. आप पकड़ भी लेते हैं तो वो स्लिप करके फिर नीचे गिर जाता है. किस लिए, बिकॉज स्किन में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड है और म्यूकस का काम क्या रहेगा, वो वहाँ पर वाटर होल्ड करके रखेगा. यानी कि स्किन को मॉइस्ट रखने में किसका रोल है, म्यूकस ग्लैंड का. इसी तरह एनालिड्स में जो स्किन है दैट इज थिन और हर वक्त मॉइस्ट रहेगी. किसकी वजह से, लगातार बॉडी फ्लूइड जो सीलोमिक फ्लूइड है वो बॉडी से ऊज आउट होता रहेगा जिससे स्किन हर वक्त कैसी रहेगी, मॉइस्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म, हाईली वेस्कुलराइज्ड. वेस्कुलर सिस्टम हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए. प्लांट के अंदर ये टर्म जाइलम फ्लोएम के लिए यूज होती है. हाईली वेस्कुलराइज्ड मीन्स
ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का और CO2 का जो एक्सचेंज होगा वो एयर और ब्लड के बीच में होगा। अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इनटेक और CO2 का जो एक्सचेंज आउट है वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई इज़ वेरी हाई। तीनों के तीनों फीचर, थिन, केप्ट मॉइस्ट, हाईली वेस्कुलराइज्ड हमारी एल्वियोलाई में मिलेंगे, फ्रॉग के केस में भी मिलेंगे। लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी, इसका एडवांटेज क्या रहेगा? लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी का एडवांटेज रहेगा कि जैसे अर्थवर्म देखें, अर्थवर्म की जो बॉडी है दैट इज़ लॉन्ग एंड ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि उसका जो सरफेस एरिया है एनिमल का वो क्या रहेगा? ज़्यादा। और क्योंकि स्किन जो है, स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रही है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, स्किन का जो एरिया ज़्यादा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? फास्ट। सो इसी तरह अपने बॉडी में अगर हम देखें तो बहुत सारी, लगभग 350 मिलियन एल्वियोलाई हैं हमारी लंग में, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज गोइंग ऑन। सो 4 मेन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, इट इज थिन ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फास्ट हो, केप्ट मॉइस्ट बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ड्राई मीडियम में नहीं हो सकता, उसके लिए सम मॉइस्चर शुड बी देयर, हाईली वेस्कुलराइज्ड, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एफिशिएंटली हो सके। लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी, इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस एफिशिएंटली हो पाएगा। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ एनालिड इज स्किन। पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, इन केस ऑफ अर्थवर्म सर्कुलर एंड longitudinal muscles, they are involved in locomotion. Body wall of earthworm is having smooth muscles, and on the basis of arrangement smooth muscles are of two type, circular muscle and longitudinal. अगर वो लेंथ वाइज अरेंज्ड हैं तो उन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, और अगर वो विड्थ वाइज अरेंज है तो उन्हें हम कहेंगे सर्कुलर। इन केस ऑफ अर्थवर्म सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हेल्प्स इन लोकोमोशन। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में भी स्मूथ मसल्स हैं। बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल आर ड्यू टू सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इसी तरीके से अर्थवर्म की बॉडी में, बॉडी वॉल में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट हैं, और ये मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करेंगी बिकॉज अर्थवर्म और लीच में पैरापोडिया नहीं है, नीरिस में लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए हैं। ये क्या है? पैरापोडिया, एक्वेटिक फॉर्म है ये। लीच एंड अर्थवर्म में क्या होंगी? मसल्स होंगी फॉर लोकोमोशन। कमिंग टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिडा इज नेफ्रिडिया. Nephridia will perform the function of excretion as well as osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of water and ion balance in the body. Excretory waste जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें यूरिया रहेगा, एक्वेटिक फॉर्म है उनमें अमोनिया रहेगा, बिकॉज रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जो एनिमल एक्वेटिक हैं उनको वाटर लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ वाटर इज देयर, लेकिन जो एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं उन्हें अपने वाटर को कंजर्व करके रखना है, दे आर नॉट एबल टू लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो इसलिए वो क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। अर्थवर्म में भी देखें तो ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है। ड्यूअल मतलब दो। अगर अर्थवर्म वाटर में है, एक्वेटिक हैबिटेट में है, इट विल एक्सक्रीट अमोनिया। सेकेंडली, इफ अर्थवर्म इज ऑन मॉइस्ट लैंड, इट विल एक्सक्रीट यूरिया। सो अर्थवर्म एक्सक्रीट यूरिया एज वेल एज अमोनिया। जब वाटर सप्लाई अबंडेंट है इट विल एक्सक्रीट अमोनिया, और जब वाटर कम है इट विल एक्सक्रीट यूरिया. Why ammonia excretion require large amount of water? Because ammonia is highly soluble in water, और जैसे अमोनिया प्रोड्यूस होगा तुरंत ये किस में डिजोल्व हो जाएगा? वाटर में, और अब वाटर के थ्रू ही ये बॉडी से बाहर जाएगा. तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए. एनिमल्स यूनिसेक्सुअल भी हैं, बाईसेक्सुअल भी हैं.
पीछे हमने एस्केल्मिन्स में पढ़ा था मोस्टली एनिमल यूनिसेक्सुअल्स हैं, एंड यूनिसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं डायोसियस. डायोसियस मीन्स एनिमल आर आइदर मेल और फीमेल. नीरिस इज यूनिसेक्सुअल. एनिमल में भी जो एनालिड्स हैं दे में बी बाइसेक्सुअल. अर्थवर्म, लीच, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल. हर्मेफ्रोडाइट हम किसे कहेंगे? बाइसेक्सुअल को. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर सबसे एक यूनिक बात क्या है? ब्लड इज रेड इन annelids. In some of the annelids blood is red due to presence of hemoglobin in the plasma. ध्यान रहे, वाई आई हैव हाईलाइटेड दिस, हमारा ब्लड जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्लड में भी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन हमारे केस में जो हीमोग्लोबिन है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी. याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन अर्थवर्म hemoglobin is dissolved in plasma. So in vertebrates, hemoglobin, red colored oxygen transporting pigment found in RBCs. सेम फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में. सो एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया हैं, रेस्पायरेशन के लिए स्किन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है और ब्लड में प्रेजेंट है. सो आई होप पॉइंट्स आर क्लियर. Nerve cord in non-chordates are double, solid, ganglionated and ventral. जबकि हमारी नर्व कॉर्ड है सिंगल, होलो, नॉन गैंग्लियोनेटेड एंड डॉर्सल. सो नर्व कॉर्ड में यहाँ पर नर्व कॉर्ड में क्या है? दो चीजें हैं. वन इज नर्व रिंग, दिस इज नर्व रिंग, और ये क्या है? नर्व कॉर्ड. सो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. अब हम आते हैं नर्व रिंग पर. ये जो नर्व रिंग है दैट इज प्रेजेंट अराउंड फेरिंग्स. एनालिडा में दिस नर्व रिंग इज प्रेजेंट अराउंड फेरिंग्स. फेरिंग्स की डोर्सल साइड पर होंगे पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया. ये देखिए, ये वाले पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया are present on dorsal side of brain और dorsal side of pharynx, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? ब्रेन. अनदर नेम फॉर सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया इज ब्रेन. So nerve ring consists of pair of suprapharyngeal ganglia above the pharynx. फेरिंग्स के जस्ट नीचे, जहाँ ऊपर तो सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया है, नीचे क्या होंगे? सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया. और ये गैंग्लिया आपस में किससे जुड़े होंगे? सर्कम ओइसोफेजियल कनेक्टिव. तो ये देखो रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन गया. मान लीजिए हमारी फिंगर में कोई रिंग है, तो आप ये समझो ऊपर की तरफ तो क्या है? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया. नीचे की साइड क्या है? सब फेरेंजियल गैंग्लिया. दीज आर सब फेरेंजियल गैंग्लिया. और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट है? सर्कम ओइसोफेजियल कनेक्टिव. सो नर्वस सिस्टम ऑफ नॉन कॉर्डेट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड. अच्छे से याद होना चाहिए. और ये पॉइंट्स. सो दैट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम. नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज नीरिस. नीरिस इज क्लाम वर्म और रगवर्म. कॉमन नेम है. नीरिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक? एक्वेटिक एनेलिड है, पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, यूनिसेक्सुअल है. राइट? एक्वेटिक एनेलिड, पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन एंड यूनिसेक्सुअल. हीरोडिनेरिया, लीच. हीरोडिनेरिया के बारे में कुछ कॉमन बातें आई थिंक आपको पता होंगी, अदरवाइज हम यहाँ पर शेयर करेंगे कि जो हीरोडिनेरिया है दैट इज सैंग्विवोरस. सैंग्विवोरस क्या होता है? एनिमल्स विच सक ब्लड. ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? सैंग्विवोरस. फॉर दिस इट इज हैविंग सकर्स. सकर्स प्रेजेंट हैं ताकि ये बॉडी के साथ किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ अटैच हो जाए और वहाँ से डायरेक्टली क्या सक करे? ब्लड. सो लीच इज सैंग्विवोरस. बॉडी में फिक्स्ड सेगमेंट है. हीरोडिनेरिया की बॉडी में 33 सेगमेंट होते हैं. अगर हम अर्थवर्म में देखेंगे तो वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर देयर.
जबकि यहाँ पर जो सेगमेंट्स का नंबर है वो फिक्स है। कितने होंगे? 33। तो लीच इज सेंगविवोरस। सेंगविवोरस मीन्स इट फीड ऑन ब्लड एंड बॉडी इज हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स। कितना सेगमेंट है? 33। इसके बाद हम देखें कि ये जो हीरोडिन है दैट विल सिक्रीट एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है, कोएगुलेंट मतलब जो ब्लड का कोएगुलेशन करे। कोएगुलेशन किसको कहते हैं? क्लोटिंग को। ऐसा प्रोसेस जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। हीरोडिनेरिया एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करती है जिससे पर्सन का ब्लड क्लॉट नहीं होगा। कब? अब मान लीजिए हीरोडिन किसी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच हो गई, जैसे यहाँ देखो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ अटैच्ड इस डायग्राम में। तो यहाँ हुआ क्या है कि जब ये हीरोडिन पायर्स करेगी और हमारी बॉडी से ब्लड को सक करेगी, तो जब हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये ब्लड सक नहीं कर पाएगी या बार बार इसे पायर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हीरोडिन क्या इंजेक्ट करती है? एंटीकोएगुलेंट हीरोडिन। सो हीरोडिनेरिया लीच सिक्रीट एंटीकोएगुलेंट इन द विक्टिम्स ब्लड। विक्टिम का मतलब शिकार, जहाँ जिससे भी ये ब्लड सक कर रही हैं उसकी बॉडी में क्या रिलीज करेंगी? एंटीकोएगुलेंट, ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के ये लगातार ब्लड को सक करती रहें। राइट। सो दिस इज हीरोडिनेरिया। कौन सा एंटीकोएगुलेंट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है? वो होगा हीरोडिन। हीरोडिनेरिया नाम से। हीरोडिन इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ हीरोडिनेरिया। लीच जब इंजेक्ट करेगी तो इसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? हीरोडिन, जिसकी वजह से विक्टिम का ब्लड क्लॉट नहीं होगा और बिना किसी परेशानी के ये क्या सक कर सकती है? ब्लड। अगर हम देखें जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो भी हमारे बॉडी से क्या लेता है? ब्लड। तो ब्लड सकिंग मॉस्किटो भी हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं? एंटीकोएगुलेंट। उनके सलाइवा में भी वो अपना थोड़ा सा सलाइवा हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीकोएगुलेंट। और उस एंटीकोएगुलेंट की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। सो दिस इज हीरोडिन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेरेटीमा। फेरेटीमा इज अर्थवम, फेरेटीमा पोस्थुमा, अर्थवम। और अर्थवम में भी देखें तो अर्थवम हर्मेफ्रोडाइट है। लीच इज ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट। लीच एंड अर्थवम दोनों ही क्या हैं? बाइसेक्सुअल हैं, हर्मेफ्रोडाइट हैं और टेरेस्ट्रियल हैं। हालांकि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहेंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में नहीं रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में स्किन से वाटर का लॉस होगा एंड एनिमल डाइड। सो अगर हम बात करें हीरोडिनेरिया और फेरेटीमा की तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? दोनों जो हैं हर्मेफ्रोडाइट हैं। दोनों में ही लोकोमोशन मसल्स की हेल्प से होगा। डिफरेंस देखें तो लीच तो क्या है? सैंग्विवोरस है, पैरासिटिक है और ये एक्टोपैरासाइट है। क्या है? एक्टोपैरासाइट। जबकि और ये जो फेरेटीमा है दैट इज फ्री लिविंग। फेरेटीमा इज फ्रेंड ऑफ द फार्मर। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम इसका यूज करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब यूज ऑफ अर्थवम फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। देसी खाद बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अर्थवम का, बिकॉज अर्थवम ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। फ्रेगमेंटेशन करेगा अर्थवम किसका? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कहते हैं? डेट्राइटस। सो अर्थवम कैरी आउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा जब ये बरो, अर्थवम जो है वो बरो के अंदर रहता है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहेगा। सो इसकी वजह से ये सोयल को क्या करेगा? लूज। आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है अर्थवम का, बिकॉज दे लूजन द सॉयल। और अगर सॉयल लूज होगी तो उसमें एयर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, दैट इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसके अलावा ये डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करेगा। तो डीकम्पोजिशन में हेल्प करने से सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट क्या रहेगा? ज़्यादा।
सो अगर हम देखें सिमिलरिटी क्या है, हीरुडिनेरिया एंड फेरेटीमा में इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनने चाहिए। नीरिस यूनिसेक्सुअल है, बाकी दोनों बाइसेक्सुअल है। नीरिस में पैरापोडिया है, बाकी दोनों एनिमल में मसल्स हैं फॉर लोकोमोशन। इसके अलावा नीरिस एक्वेटिक है, बाकी दोनों टेरेस्ट्रियल हैं। नीरिस फ्री लिविंग है, अर्थवर्म भी फ्री लिविंग है। लीच क्या है, पैरासाइट है और एक्टोपैरासाइट है। सेंग्विवोरस है, ब्लड पे फीड करती है। फेरेटीमा डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा एंड इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। सो आई होप that's all about phylum Annelida, and in next video we will discuss one more phylum, that is phylum Arthropoda. So that's all for today. Have a good day.